कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर की भी मैचिंग की जाए। A पॉजिटिव, A नेगेटिव या A नेगेटिव है। Hello and welcome back to all my lovely Smartians. How are you doing? Today I am up with a very interesting video dealing with the topic erythroblastosis fetalis. Many of you have confusion in this topic, so I promise that if you see this video till the end, all your confusions will be resolved and you'll know about it with concepts. So erythroblastosis fetalis is a kind of a medical condition which is an RH incompatibility issue. To deal with this topic, first I will make you familiarize with the concept of RH factor, right? So what is RH factor? RH factor stands for rhesus factor. Now why it is called rhesus factor? Because this factor was first identified or discovered in rhesus monkey. So is the name RH factor, right? So name क्यों है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो name क्यों रखा गया है। कुछ भी हम लोग को रटना नहीं है, करेक्ट? तो rhesus factor का नाम rhesus factor इसलिए पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी rhesus monkey में की गई थी। Now what is this factor? Rhesus factor are type of antigens, or you can say transmembrane proteins which are expressed on the surface of RBCs. ये एक तरीके के transmembrane proteins होते हैं जो RBC के surface पर express किए जाते हैं. So they are antigens, of course the self antigens क्योंकि ये आपकी body के part है. So they are self antigens and chemically they are proteins. So they are transmembrane protein. Transmembrane means that they span the entire plasma membrane of the RBC. Proteins expressed on the surface of RBCs. करेक्ट? ज़रूरी नहीं होता है बेटा कि RBCs, हर एक के RBCs में RH फैक्टर एक्सप्रेस होगा ही, बट जिनके RBC पर RH फैक्टर एक्सप्रेस होता है ऐसे ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल कहते हैं, और जिनके सरफेस पर ये एक्सप्रेस नहीं होता है उन्हें RH नेगेटिव। जैसे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, सोचिए A पॉजिटिव या A नेगेटिव। तो अब आपको समझ में आया, आपके ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव का मतलब है कि आपके RBC के सरफेस पर A एंटीजन भी है और RH एंटीजन यानी RH फैक्टर भी है। अगर A नेगेटिव है ब्लड ग्रुप तो A एंटीजन तो एक्सप्रेस हो रहा है बट देयर इज नो RH एंटीजन एक्सप्रेसिंग ऑन द सरफेस। क्लियर? If RH factor present, then that person will have RH positive blood group. RH positive. If RH factor absent, then it will be RH negative. तब हम क्या बोलेंगे? RH negative. आया समझ में? ये देखिए यहाँ पर RBC के सरफेस पर RH फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए ये वाला ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर कोई भी RH फैक्टर नहीं है, सो इट इज RH नेगेटिव। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि RH फैक्टर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है RH फैक्टर का प्रेजेंस या एब्सेंस। क्लियर? अब ये एक इनहेरिटेबल फैक्टर है। Now this RH factor or this antigen which is expressed on the surface of RBC is an inherited factor. So we inherit genes from our parents of the expression of the RH factor on the surface of RBC. The expression of this protein is heritable.
expression of RH factor is inheritable. Inheritable का मतलब है कि there is a gene which is coding for this factor, for this protein to be expressed on RBC, and that gene is inherited from the parents. So inheritable का मतलब क्या हुआ? That the gene coding for this factor is inherited from parents to the offspring. From parents to the offspring. Clear? I hope यहाँ तक आपको conceptually बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि RH फैक्टर किसे कहते हैं और उसका इनहेरिटेंस भी होता है. ठीक है? Individual who are RH positive can accept blood from both RH positive और negative, and negative वाले सिर्फ negative से. ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे. RH फैक्टर क्लियर हुआ, वो प्रोटीन जो सब RBC के सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं along with the antigen of the ABO blood grouping system. They are called RH factor. They are type of transmembrane protein which are inherited from parents to offspring. तो अब ये समझना है कि inheritance होता कैसे है. What is the inheritance pattern? The RH factor is encoded by gene D, let's say, and the inheritance is a dominance recessive relationship. यानी RH factor की जीन क्या है? जीन D. ठीक है? Gene D is coding for RH factor. The capital D will be dominant, coding for RH factor, और ये जीन की दो अलील आपस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप शो करती हैं. आप सब ने डोमिनेंस और रिसेसिव कंडीशंस पढ़ी हैं. डोमिनेंट वो अलील होती है जीन की जो होमो एज वेल एज हेट्रोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस हो सकती है, और रिसेसिव वो अलील होती है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होती है. सो द डोमिनेंट जीन D, allele D, codes for RH factor, and this allele is dominant. So presence of an RH factor is a dominant condition. Small d allele do not code for RH factor, do not code for RH factor, and this is a recessive condition. So RH positive condition कब होगा? जब RH factor present होगा, और RH factor present तब होगा जब dominant condition होगी. It is a dominant condition, और डोमिनेंट अलील किस केस में एक्सप्रेस करती है? हेट्रो एज वेल एज होमो, विच मीन्स कैपिटल डी होमोजाइगस डोमिनेंट और कैपिटल डी स्मॉल डी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. द RH नेगेटिव पीपल will have a recessive condition. It means their genotype for this condition, RH negative condition, will be only small d, homozygous recessive. तो अब हम इसका inheritance pattern देखते हैं. देखिए, father is homozygous dominant for the RH positive. homozygous RH positive के लिए homozygous
डोमिनेंट, यानी कैपिटल डी कैपिटल डी, और मदर क्या है, RH नेगेटिव है, सो ऑफ कोर्स होमोजाइगस रिसेसिव। तो ऐसे केस में व्हेन कैपिटल डी स्मॉल डी अलील्स मीट अप इन द जाइगोट, तो ये बेबी कैसा होगा, RH पॉजिटिव। कैपिटल डी स्मॉल डी, तो बेबी विल बी RH पॉजिटिव। कैपिटल डी स्मॉल डी अगेन RH पॉजिटिव, क्योंकि सारी कंडीशन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ऐसे केस में ऑल दी बेबीज विल बी 100% RH पॉजिटिव। जो भी उनका ब्लड ग्रुप होने वाला है वो पॉजिटिव वाला ही होगा, क्योंकि RH एंटीजन एक्सप्रेस करेगा। बट अगर फादर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते, अगर फादर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते, तो ऐसे केस में 50-50 चांसेस होते। मदर तो RH नेगेटिव ही है, राइट, फादर क्या है, RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। दोनों ही केस में मदर क्या थी, RH नेगेटिव थी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाली कंडीशन है वो बेटा क्या होगी, RH पॉजिटिव, विच इज 2/4 और 1/2, और ये जो होंगे स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ये RH नेगेटिव होंगे। सो 50% RH पॉजिटिव एंड 50% RH नेगेटिव। इनहेरिटेंस पैटर्न समझ में आया। RH फैक्टर का एक्सप्रेशन RBC पर एक डोमिनेंट ट्रेट है, जो या तो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी या हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा कि जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर की भी मैचिंग की जाए। A पॉजिटिव, A नेगेटिव या A नेगेटिव है, RH फैक्टर को मैच करना अलोंग विद द ब्लड ग्रुप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव की बॉडी में गया तो वहाँ पर लेटर ऑन क्या हो सकता है, एग्लूटिनेशन या कोएगुलेशन। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, a medical condition, it is a RH incompatibility condition only, जहाँ RH फैक्टर्स करेक्टली मैच नहीं होते और ये कंडीशन अराइज हो जाती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। So I am teaching you right now RH incompatibility. देखिए, एक RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी में RBC विल लैक RH फैक्टर, उसकी बॉडी में RH फैक्टर नहीं होगा, और अगर RH फैक्टर है ही नहीं तो प्लाज्मा हैज नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH। करेक्ट। एक RH पॉजिटिव के ब्लड में RBCs will show presence of RH factor, और इनके प्लाज्मा में भी नो एंटीबॉडी, और ये RH के खिलाफ कभी एंटीबॉडी रख ही नहीं सकते क्योंकि इनके खुद के सेल मारे जाएंगे। करेक्ट। बट अगर एक RH नेगेटिव की बॉडी में आप एक RH पॉजिटिव का ब्लड डालेंगे तो क्या होगा? When RH नेगेटिव exposed with RH positive blood, RH पॉजिटिव ब्लड का मतलब है कि उसके RBC पर RH एंटीजन है, दिस इज RH एंटीजन,
ठीक है। जब एक RH नेगेटिव के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड डाला जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम RH एंटीजन को फॉरेन एंटीजन ले लेगा। उसके लिए वो कुछ नया है जो उसकी बॉडी ने कभी नहीं देखा, और ऐसा होने पर RH नेगेटिव का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। करेक्ट। जैसे आपके घर में अगर कोई घुस जाए बिना आपकी परमिशन के, तो आप बैठ के देखेंगे थोड़ी, आप भी रिएक्ट करेंगे ना। इफ अ थीव्स एंटर यू विल ऑल्सो फाइट। सिमिलरली यहाँ RH नेगेटिव की बॉडी के लिए RH पॉजिटिव एक एंटीजन, एक फॉरेन एंटीजन है, एक थीफ ही है मान लीजिए, उसके अगेंस्ट उसके इम्यून सिस्टम ने क्या बनाना शुरू किया? एंटीबॉडीज। करेक्ट। और so they will have no antibody against RH until it is exposed to RH positive blood. अब ये एक्सपोज हो चुका है तो बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग व्हाट? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटी-RH एंटीबॉडी, एक ऐसी एंटीबॉडी जो RH फैक्टर के खिलाफ है। और जब ऐसा होगा तो वो एंटीबॉडी, ये देखो ग्रीन कलर में जो मैं बना रही हूँ वो RH एंटीबॉडी है। ठीक है। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी? इसको मारने लगेगी एंड दैट विल लीड टू क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। दिस विल कॉज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग। इसलिए RH फैक्टर की मैचिंग होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ABO ब्लड ग्रुप को मैच करना। अदरवाइज एक RH नेगेटिव पर्सन की बॉडी RH पॉजिटिव ब्लड को देखते ही एंटीबॉडी बना के वहाँ पर क्लॉटिंग कर देगी विच कैन कॉज डेथ। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पीपल सिर्फ और सिर्फ ब्लड RH नेगेटिव वालों से ही ले सकते हैं, जबकि RH पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव वाले भी दे सकते हैं और नेगेटिव वाले भी। पॉजिटिव वाले देंगे तो RH एंटीजन साथ में आएगा एंड वो उसकी बॉडी में पहले से था तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। RH नेगेटिव दोगे तो एंटीजन कोई आ ही नहीं रहा है साथ में, तो बॉडी वैसे भी रिएक्ट नहीं करेगी। सो RH पॉजिटिव तो दोनों से ले सकते हैं बट RH नेगेटिव वाले दोनों से नहीं ले पाएंगे। अब आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कंडीशन पर, जो कि एक इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ही है, RH इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। इस केस में एरिथ्रो मतलब है RBC, ब्लास्टोसिस मतलब है बर्स्टिंग, और फीटालिस का मतलब है फीटस। मतलब फीटस के RBCs बर्स्ट करते हैं या कोएगुलेट करते हैं। देयर इज लाइसिस और कोएगुलेशन कब? जब फीटस RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो। तो ये फीटस स्टेज में ब्लास्टिंग हो रही है, इसलिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इस कंडीशन में क्या होता है? सबसे पहले ये कंडीशन तब होती है जब मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है। सो दिस अकर्स, कंडीशन क्या चाहिए इसके लिए? इट इज, पहले तो इट इज एन RH इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कब होता है। इट अकर्स व्हेन मदर RH नेगेटिव होगी और फीटस RH पॉजिटिव होगा। RH नेगेटिव, fetus RH positive. We know कि the growing fetus take all the nutrition from the mother
and give her the waste material. और वो जो connection है, the structural and functional unit that connects the mother and the fetus is the placenta. The placenta of the mother is connected to the fetus by means of umbilical cord. ये placenta है जो umbilical cord से fetus से connected है. मदर RH नेगेटिव है और fetus RH पॉजिटिव है. प्लासेंटा कभी भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं करवाता, करेक्ट. प्लासेंटा के थ्रू सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज होता है, बट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड. ये आप बात नोट कर लीजिए, कभी भी आरबीसीज मिक्स नहीं होंगे. यहाँ तक कि एंटीबॉडीज भी सारी क्रॉस नहीं कर सकती. प्लासेंटा को क्रॉस करने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो होती है IgG, immunoglobulin G is the only antibody that can cross. IgG is a class of antibody, so class of antibody that can cross placenta, ठीक है, cross placenta and reach the fetus, ठीक है. IgG का क्लास का एक एग्जाम्पल है anti-RH एंटीबॉडी. तो anti-RH एंटीबॉडी भी क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को, जो कि IgG टाइप की एंटीबॉडी है. ये कंडीशन कब हो रही है? जब मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है. प्लासेंटा के थ्रू ये कंडीशन अराइज होती है, ठीक है. देखिए प्लासेंटा ये वाला पार्ट और अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है टू द फीटस, ठीक है. ये प्लासेंटा का इंटरनल स्ट्रक्चर है. दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड में सिर्फ फीटस के ही आर्टरीज और वेन्स होती है और कुछ नहीं होता है. प्लासेंटा मदर वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जिसमें फीटस के वेसल्स आ जाते हैं बट अम्बिलिकल कॉर्ड में कंटिन्यू होंगे वो, और इधर मदर के. प्लासेंटा मदर के यूट्रस लाइनिंग और फीटस के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दोनों के कंट्रीब्यूशन से इंटरडिजिटेशन होता है और तब बनता है और एक्सचेंज टेक प्लेस होता है. इस केस में जब मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तो पहली प्रेगनेंसी में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि प्लासेंटा विल नॉट अलाउ एनी एक्सचेंज ऑफ RBC. There is no exchange or mixing of blood in the through placenta. ये तो फैक्ट है. प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लासेंटा रप्चर हो जाता है डिलीवरी के टाइम पर, एंड सम ड्रॉप्स ऑफ blood of fetus gets exposed to the mother's body. और सिर्फ एक ड्रॉप ही काफ़ी है मदर की बॉडी को रिएक्ट करने की टू प्रोड्यूस दी RH एंटीबॉडी, क्योंकि जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है. तो जब ब्लड एक्सपोज होगा तो मदर का इम्यून सिस्टम पहली बार क्या देखेगा? RH एंटीजन, और उसके खिलाफ क्या बनाने लगेगा? RH एंटीबॉडी. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी. फर्स्ट प्रेगनेंसी इज नॉर्मल, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्लेसेंटा रप्चर्स, प्लेसेंटा ruptures, RH negative blood of fetus exposed to RH positive blood of fetus exposed to RH negative blood of mother. Hence what will happen? Mother will start producing mother's body
start producing anti-RH antibody. क्या बनाने लगेगी मदर की बॉडी? anti-RH antibody. करेक्ट. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? नेक्स्ट प्रेगनेंसी में. अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में फीटस फिर से RH नेगेटिव पॉजिटिव हुआ और मदर RH नेगेटिव है, इस बार मदर के ब्लड के प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, राइट. सो इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द प्रॉब्लम विल अकर. अभी यहाँ देखिए, फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है. डिलीवरी के टाइम कुछ ब्लड एक्सपोज हो गया, ये देखिए, द ब्लड इज गेटिंग एक्सपोज, पॉजिटिव ब्लड टू द मदर्स बॉडी, है ना. और उसके इम्यून सेल देखते ही क्या बनाने लगेंगे? येलो कलर की जो आप देख रहे हैं एंटीबॉडी उन्होंने बनाई. नाउ इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी व्हाट विल हैपन? अगर RH पॉजिटिव बेबी हुआ नेक्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रेगनेंसी में, तो प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज भी रिलीज आउट होंगी, है ना. तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में जो प्लासेंटा है वो क्या लीक कर रहा है बाहर? देखो, ये येलो कलर की anti-RH एंटीबॉडी थी जो अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस तक पहुंच रही हैं. क्योंकि ये IgG टाइप की एंटीबॉडी है, ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगी और ऐसे केस में फीटस के RBC जब ऐसी एंटीबॉडी से एक्सपोज होंगे तो वहाँ पर क्लॉटिंग होगी, क्योंकि फीटस के जो RBC है उस पर RH एंटीजन लगा है, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी आ रही है, तो कोएगुलेशन होने लगेगा ब्लड का सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में. ठीक है. दैट विल लीड टू bursting of RBCs of the fetus and that is called erythroplastosis fetalis. fetus के एरिथ्रोसाइट का ब्लास्ट, bursting होना, coagulation होना. तो ये कब होगा? subsequent pregnancies if फीटस अगेन क्या है? RH पॉजिटिव है, RBC विथ RH एंटीजन, है ना. और मदर इस बार RH नेगेटिव तो है, मदर RH नेगेटिव, बट द प्लाज्मा कंटेन, but plasma of mother contain anti-RH antibody. ठीक है, जिसकी वजह से these antibodies will cross the placenta and will cause coagulation, bursting of fetus RBC. होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसी के खिलाफ भाई एंटीबॉडी आ गई है, उसके सरफेस पर लगे हुए थे और एंटीबॉडीज आके उसे मारना शुरू कर रही है. ठीक है. तो ऐसे केस में जब कोएगुलेशन होगा तो व्हाट विल बी द सिम्टम? ऐसे बेबीज के एनीमिक होंगे क्योंकि RBC की कमी हो चुकी है, एनीमिक होंगे, साथ साथ RBC की बर्स्टिंग से, ब्रेकडाउन की वजह से, द वन ऑफ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज बिलीरुबिन. वो बिलीरुबिन एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में, लीडिंग टू जॉन्डिस, द येलो फीवर. तो बिलीरुबिन की वजह से जॉन्डिस भी होगा. देयर विल बी एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एंड द लिवर. सच बेबीज आर इवन स्वेलन. सो सिम्टम्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज
anemia due to bursting of RBC. Second, such baby will also have jaundice, as breakdown of RBC lead to accumulation of which beta? Bilirubin. Accumulation bilirubin या biliverdin. There will be enlarged liver and spleen. ठीक है, and in severe cases it can also lead to death. Severe cases में डेथ भी हो सकती है. अब इसका बेसिकली बेटा ट्रीटमेंट क्या है ना? जब ऐसा होता है तो उस समय क्या किया जाता है? मदर की बॉडी से RH एंटीबॉडीज को फ्लश आउट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और फीटस की बॉडी में बहुत सारा RH नेगेटिव ब्लड डाला जाता है, साथ ही साथ ड्रेन आउट हो रही है एंटीबॉडीज मदर की बॉडी से. RH नेगेटिव ब्लड धीरे धीरे जो फीटस की बॉडी में डाला वो रिप्लेस हो जाएगा RH पॉजिटिव से, जब उसके सेल्स बनाएंगे खुद से. पॉजिटिव में नेगेटिव ब्लड डालने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये किया जा सकता है. पर इस कंडीशन को प्रिवेंट कैसे करते हैं? ये कंडीशन ना ही आए तो अच्छा है. तो इस कंडीशन का प्रिवेंशन क्या है वो मेन आपको समझना चाहिए. प्रिवेंशन ये है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद जब ब्लड ग्रुप टेस्ट हो और पता लगे कि फीटस RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो ऐसे केस में जो मदर है उसको विद इन 72 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी anti-RH एंटीबॉडी दे देनी चाहिए, ताकि जो भी फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड उसमें एक्सपोज हो गया है वो RH एंटीबॉडी जो हमने बाहर से दी वो फाइट कर ले, और मदर की खुद की बॉडी एंटीबॉडीज ना बनाए RH के अगेंस्ट. जो हम बाहर से देंगे दैट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. बनी बनाई एंटीबॉडीज दे दी, वो काम करने के बाद बॉडी से निकल ही जाएंगी, राइट? और बॉडी ने नहीं बनाई तो उसकी कोई मेमोरी भी नहीं होगी. लेकिन अगर बॉडी खुद बनाती तो उसकी एक मेमोरी रह जाती, और फिर वो एंटीबॉडी फॉर श्योर हमेशा के लिए बॉडी में बनती ही रहती, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में, और फिर वही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जिसमें एनीमिया, जॉन्डिस, इन एक्सट्रीम केस डेथ भी हो सकती है. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि after the delivery of first child, first RH positive child, mother should be injected, mother should be injected within 72 hours with anti-RH antibodies to fight against RH positive blood she is exposed to, so that her own body do not produce antibodies, है ना, ताकि उसकी खुद की बॉडी ना बनाए anti-RH antibody, and hence the subsequent pregnancies will be normal. क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि RH फैक्टर क्या है. It is a type of
प्रोटीन और एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अगर होगा तो RH पॉजिटिव, नहीं होगा तो RH नेगेटिव। इसका एक इनहेरिटेंस पैटर्न है क्योंकि एक इनहेरिटेड प्रोटीन है। द जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। RH फैक्टर होना RBC पर एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो अगर आप होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब आप एक्सप्रेस करेंगे, और अगर नहीं है आपके ब्लड में RH फैक्टर देन यू आर होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसे केस में अगर मदर RH नेगेटिव है और उसका फीटस RH पॉजिटिव है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के एंड में जब प्लेसेंटा रप्चर होगा तो उसका ब्लड एक्सपोज हो जाएगा टू दी मदर्स बॉडी और वो RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज जब बन जाएंगी तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में अगर फीटस फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो ये RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा से लीक हो सकती है इनटू द बेबीज ब्लड, causing clotting, bursting of RBCs, leading to anemia, jaundice and enlargement of liver or spleen। इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही मदर की बॉडी में आप इंजेक्ट कर दो anti-RH एंटीबॉडीज, ताकि उसकी खुद की बॉडी ये बनाए नहीं। जब वो काम खत्म हो जाएगा तो जो आपने दी वो तो चली गई, बॉडी में कोई मेमोरी ही नहीं रही, तो अल्टीमेटली द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज नॉर्मल रहेंगी। तो देखते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस का रिस्क कब होता है, जब मदर RH पॉजिटिव हो या बेबी RH पॉजिटिव हो। कंडीशन आपको स्टार्टिंग में मैम आपने बताई थी, मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मदर RH पॉजिटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो इनकम्पैटिबिलिटी, सो नो रिस्क। मदर RH नेगेटिव है, फीटस भी RH नेगेटिव है तो एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रोल ही नहीं है, सो नो रिस्क। बट अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है तब इनकम्पैटिबिलिटी इशू आएगा और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन का समझ में आया है। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो अब आप इसके PYQ लगाइए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Stay tuned for more upcoming interesting videos. Do let me know what more topics you want to understand and I'll definitely make the videos on it. Till then, stay happy, keep smiling. Bye.